Welcome, guys, for the next topic which we'll discuss, which is the different doctrines of state succession. State succession. You've already read about it. Who those people who haven't seen the previous videos, please do check them out. Especially for state succession, because the topics which I'll be teaching right now, it will not make sense if you haven't read the basics of state succession. So, so the first is the doctrine of universal succession, which is written here. Doctrine of universal succession. It is arrived from a Roman law concept of inheritance. It is majorly inspired by Roman law concept of inheritance and the concept of civil law in Hughes Civilis. देखिए मैंने आपको कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसको याद करने की कोशिश करिए जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था आप लोगों को इंटरनेशनल लॉ की. ठीक है. सो मेजर प्रोफेसर्स वर प्यूफेंडॉर्फ, एल्पेरिको जेंटली and Hugo Grotius. The major proponents of this doctrine were these three gentlemen. Then he argued that all rights and liabilities of predecessor state flow to successor state. Right? Through universal succession, the concept of principle of sovereignty gets transferred to the successor state and it thereby ensure continuity. This theory does not make any difference between treaty, property or debt in succession. Right. So, through universal succession, the concept of principle of sovereignty gets transferred to successor state. ठीक है, यहाँ पे लिख के मैं समझाता हूँ आपको. थ्रू यूनिवर्सल सक्सेशन जब होगी, ठीक है, तब जो प्रिंसिपल सॉवरेनिटी है एक स्टेट की, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी सक्सेसर स्टेट पे. ठीक है, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे. So it thereby ensures continuity. This theory does not make any difference between treaty, property or debt in succession. Right. So this theory does not make any difference between treaty, property or debt in succession. But these differences are maintained in VCST, the different Vienna Conventions जो मैं आपको भी पढ़ाऊँगा. ठीक है. उसके बाद है जनाब क्लीन स्लेट डॉक्ट्रिन. ठीक है. It was developed in the late, I think, 19th century under the influence of voluntarist theories which dominated international law during that particular period. ठीक है. Vienna Convention on succession of states in respect to treaties, आर्टिकल 16 में इसकी बात करी भी गई है. ठीक है. और मेजरली इसमें कहा क्या गया मैं आपको ये बताता हूँ. अकॉर्डिंग टू सच जो वॉलंटरिस्ट थ्योरीज की मैं बात कर रहा था, सॉवरेन स्टेट्स कैन एंजॉय राइट्स एंड इनकर ऑब्लिगेशंस टू विच they have only consented. Right. Sovereign states can only enjoy rights and incur obligations to which they have consented. Right. However, therefore the rights and obligations of the predecessor states relating to the territory transferred cannot be considered to automatically pass to the successor state. Right. अगर फॉर एग्जांपल प्रीडिसेसर स्टेट से सक्सेसर स्टेट के पास
टेरिटरी जानी है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली पास नहीं होंगी, ठीक है। इज़राइल ने इस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन को यूज़ किया है काफ़ी बार। और राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑटोमेटिकली जाएगी, ओनली द राइट्स गेट ट्रांसफर्ड एंड नो लाइबिलिटीज़। दो तरीके होते हैं, या तो कोई भी राइट एंड लाइबिलिटी नहीं जाएगी, या सिर्फ राइट जा सकती है और कोई लाइबिलिटी ना जाए, ठीक है। लाइबिलिटी क्या होती हैं? डेट्स, ऑब्लिगेशन एंड ऑब्लिगेशन इन ट्रीटीज़, राइट। सो राइट्स इंक्लूड व्हाट? राइट्स इंक्लूड प्रॉपर्टी, आर्काइव्स एंड ट्रीटीज़, ठीक है। और जो ट्रीटीज़ में भी होते हैं उसमें या तो नॉन कॉलोनियल केसेस हो सकते हैं या कॉलोनियल केसेस हो सकते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी क्या सीन है उनका, ठीक है। बट in this particular doctrine, the state practice rarely reflect either the universal succession doctrine or the clean state doctrine in their entirety. In most cases of state succession, only some rights and obligations relating to succession, relating to the territory transferred are transmitted from the predecessor state to the successor state, while others are not. For example, following the absorption of the German Democratic Republic, GDR, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है आप लोगों का, जस्ट अ सेकेंड, या GDR, ये मैं एक मिनट हटाऊँ, GDR, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जब उन्होंने प्रॉपर्टी एंड डेट्स की जो लाइबिलिटी है उन्हें देखा था, तो फॉर एग्जांपल GDR FRG में गया था, राइट। जो जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में गया था। तो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी ने प्रॉपर्टी और डेट्स तो ले ली, लेकिन ट्रीटीज़ नहीं ली, ठीक है। ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि वो कौन सी डॉक्ट्रिन फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही होता है, जो क्लीन स्टेट डॉक्ट्रिन है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जो राइट्स और ऑब्लिगेशन है एक प्रीडिसेसर स्टेट की इन रिलेशन टू दी टेरिटरी ट्रांसफर्ड, इससे टेरिटरी ट्रांसफ़र होगी अगर, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए ट्रीटी ऑब्लिगेशंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। हर एक स्टेट में डिपेंड करता है कि वो कितनी राइट्स, कितनी लाइबिलिटीज़ लेना चाहती हैं। लेकिन जो ट्रीटीज़ का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है, ट्रीटीज़ का कॉन्सेप्ट दो कॉन्सेप्ट में डिवाइडेड है। मैं आपको पूरा भी समझाऊंगा कि बेसिकली वियना कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले आई थिंक वियना कन्वेंशन के बारे में पढ़ाया था, राइट। हाँ, ये रहा। स्टेट सक्सेशन दो तरीके से होंगी। वियना कन्वेंशन दो है, एक 78 की, एक है 1983 की, ठीक है। दोनों में सक्सेशन ऑफ स्टेट्स होते हैं, लेकिन जो वियना कन्वेंशन ऑन सक्सेशन ऑफ स्टेट्स है, उसमें ट्रीटीज़ की बात करी गई है, जो 1978 वाली है उसमें। और जो वियना कन्वेंशन सक्सेशन ऑफ स्टेट्स हैं ऑफ 1983, उसमें स्टेट प्रॉपर्टी, डेट और आर्काइव्स तीनों की बात करी है, ठीक है। तो अभी हम ट्रीटी वाली पे बात करेंगे। ट्रीटी वाली जो वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन ऑफ सक्सेशन ऑफ स्टेट्स 78 की जो है, ठीक है, वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है। एक है नॉन कॉलोनियल केसेस और एक है कॉलोनियल केसेस, ठीक है। वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। आर्टिकल 34 में क्या बात करी है? सक्सेशन ऑफ स्टेट्स इन केसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ अ स्टेट। आर्टिकल 16 में क्या बात करी है? पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू ट्रीटीज़ ऑफ प्रीडिसेसर स्टेट, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन ट्रीटीज़ इन फोर्स एट डेट ऑफ सक्सेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। जब when only some parts are succeeded, राइट। 16 में क्या बात करी है? ट्रीटीज़ इन रिस्पेक्ट टू प्रीडिसेसर स्टेट, और इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रीटीज़ एंड कौन सी डेट
पर वो इन्फोर्स होंगी। ठीक है, अब मैं आपको पूरा एक बार ये समझाया तो क्लीन स्लेट फिर से। दिस डॉक्ट्राइन केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर यूनिवर्सल सक्सेशन एंड स्टैंड्स इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू यूनिवर्सल सक्सेशन डॉक्ट्राइन। एज पर दिस डॉक्ट्राइन, since the sovereign state should have the right to decide, they can through their concept accept reject to be a part of a treaty। देख मैंने यही बताया आप लोगों को कि वो ट्रीटी का पार्ट बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं, उन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, इंडिया पोस्ट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन इट्स ओन डिसाइडेड टर्म्स। दे वर ईदर टू बी बाउंड और नॉट बाउंड बाय द ट्रीटीज एंटर्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया। द 78 कन्वेंशन विच आई जस्ट टोल्ड यू 2 minutes back distinguishes between colonial and non-colonial cases. More rights are given to successors states in colonial cases under Article 16 and 17। एक ये बहुत ही आर्बिट्ररी चीज़ मुझे लगती है पर्सनली। तो अगर इस पर कोई क्वेश्चन है इंटरनेशनल लॉ पे तो आप ये एक क्रिटिक लिख सकते हैं कि वाई इज़ इट आर्बिट्ररी ओनली फॉर द कॉलोनियल स्टेट्स, वेयर एज लेस राइट्स आर गिवन टू सक्सेसर स्टेट्स इन नॉन कॉलोनियल केसेस टू डिसाइड एज टू द बाइंडिंग नेचर ऑफ ट्रीटीज एंटर्ड इनटू द प्रीडिसेसर स्टेट। ठीक है, यही मैंने आपको पूरा समझाया। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पर्सनल ट्रीटीज़ एंड रियल ट्रीटीज़ का। ठीक है, जो पर्सनल ट्रीटीज़ होती है एक पर्टिकुलर स्टेट की, वो जनरली यूजुअली ट्रांसफ़र हो जाती है टू सक्सेसर स्टेट। ठीक है, बिकॉज इट इज़ प्योरली पॉलिटिकल इन नेचर, जैसे एक्सट्रेडिशन के लॉज हो गए या असाइलम के लॉज हो गए। लेकिन जो रियल ट्रीटीज़ है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, जनरली पास हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल नेचर क्या है उस पर्टिकुलर स्टेट का। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सनल एंड रियल ट्रीटीज़ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एज टू विच अमंग देम बाइंड्स द सक्सेसर स्टेट। एज रिगार्ड्स पर्सनल ट्रीटीज़ ऑफ predecessor state are concerned, they usually do not transfer to the successor state because they were entered into purely for political reasons। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे अभी। Reasons for example are political alliances, extradition treaties और जो asylum की मैंने यहाँ बात करी। ठीक है, the real treaties however pass the successor state because they are related to territory of the predecessor state। For example, recent treaties considering land, rivers, lakes। फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना खास्ता जैसे इंडस वाटर ट्रीटी थी, वो तो खैर अब रद्द कर दी गई है, लेकिन अगर अभी भी वो लागू होती और पाकिस्तान का स्टेट दो में डिवाइड हो जाता है, एक इस्लामी रिपब्लिक और एक बलूचिस्तान। ठीक है, तो क्या बलूचिस्तान के पास इंडस वाटर ट्रीटी की ऑब्लिगेशंस रहती या नहीं रहती? ठीक है, दैट वाज अ मेजर लीगल क्वेश्चन टू बी कंसिडर्ड। एंड वहाँ पे ये रियल ट्रीटीज़ का कॉन्सेप्ट आता कि क्या पॉलिटिकल नेचर जो बलूचिस्तान का है वो रिकग्नाइज करता है इंडस वाटर को वहाँ पे एंट्री लेने के लिए या नहीं। ठीक है, सो दैट इज़ द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल ट्रीटीज़। अनदर बेस्ट एग्जाम्पल इज़ ये, जैसे मैंने अभी बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट आपको बताया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एर्गा ओमनेस का कॉन्सेप्ट क्या है पहली बार। ठीक है, एर्गा omnes, all the treaties entered into by the predecessor state which are erga omnes, मतलब towards all in nature bind the successor state because these treaties deal with important issues, for example human rights, environment etc। मतलब जो erga omnes है रियल ट्रीटीज वो बाइंड होंगी ही होंगी। प्रिंसिपल ऑफ क्लीन स्लेट के क्या एक्सेप्शंस हैं? ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट आर्टिकल 11 and 12 operates as an exception to the clean slate doctrine under Article 16, right? यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया। हाँ, क्रिटिसिज्म क्या था यूनिवर्सल स्टेट डॉक्ट्रिन का? इट माइंडलेसली अप्लाइड सिविल लॉ कॉन्सेप्ट इन इनहेरिटेंस इन इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए और आपको ये याद रह गया, ठीक है, तो मान के चलिए +1 या +0.5 कुछ भी आ सकता है आपका, राइट। नाउ व्हेन इट कम्स टू द सक्सेशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी बाय सक्सेसर स्टेट, द लॉ इज स्टिल इवॉल्विंग, राइट। व्हेन इट कम्स टू द राइट्स ऑफ डी फैक्टो और डी ज्यूरे गवर्नमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, डी ज्यूरे गवर्नमेंट विल हैव द राइट ओवर द प्रॉपर्टी विच इज़ बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली लोकेटेड।
ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द राइट्स ऑफ डी फैक्टो और डी ज्यूरे गवर्नमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, डी ज्यूरे गवर्नमेंट विल हैव द राइट ओवर द प्रॉपर्टी विच इज़ बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली लोकेटेड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डी फैक्टो और डी ज्यूरे गवर्नमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया था। डी ज्यूरे गवर्नमेंट विल हैव द राइट ओवर द प्रॉपर्टी विच इज़ बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली रिकॉर्डेड बिकॉज डी ज्यूरे इज़ more powerful in nature. The rights ascribed to the de jure government applies even in the case of successor state. ठीक है, देखिए, और जो स्टेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये पार्शियल भी हो सकता है और टोटल भी हो सकता है। टोटल में सारी जाती हैं, पार्शियल में अगर सेम लैंड है तो सेम लैंड पे जाती है, फॉरेन लैंड है तो कहीं नहीं जाती है। कोई आंसर नहीं है पार्शियल लैंड का। ठीक है, बट अगर आप ये डायग्राम बना देंगे ना अपने पेपर में तो काफ़ी हेल्प मिलेगी, टीचर को भी समझ आएगा कि आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ट्रीटीज़ के बारे में, मैं प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, और मैं डेट के बारे में पढ़ाऊँगा। तो डेट डिवाइडेड है पब्लिक डेट और प्राइवेट डेट में। पब्लिक डेट में होती हैं दो तरीके की, एक होती है इंटरनल पब्लिक डेट और एक होती है एक्सटर्नल पब्लिक डेट। इंटरनल में आते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, G-Secs जिसे हम बोलते हैं, G-Secs। ठीक है, किन किन तरीके से डिवाइडेड होते हैं अगर आपको ये पता करना है तो आप कमेंट्स लिखिए, मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद है एक्सटर्नल। जो वर्ल्ड बैंक या IMF के पास RTPs होते हैं, रिवर्स ट्रांसपोजिशन, वर्ल्ड बैंक के पास काफ़ी सारे उनके ट्रेजरी में होते हैं। तो दीज इंक्लूड पब्लिक डेट्स। प्राइवेट डेट क्या क्या इंक्लूड करता है? इंटरनल बैंक लोन्स जो होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल में किसी स्टेट ने पेमेंट ही नहीं दी फॉर एग्जांपल। ठीक है, प्री डिसेसर स्टेट की डिवीजन इस तरीके से हो रखी है। अगर एक्सटर्नल डेट जो है वो 20 बिलियन की है, 20 बिलियन से ऊपर की है तो वो सक्सेसर स्टेट के पास चली जाती है, और इंटरनल डेट अगर 1 बिलियन तक की है तो वो राइट ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस क्रिएट किया गया है इस तरीके से। बहुत ही अगेन कि क्या सोच के क्या मंशा रही होगी लॉ मेकर्स की, हमें नहीं पता, लेकिन अगर क्वेश्चन आया तो हमें ये लिखना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो मैं डेट्स का फिर से आपको बताता हूँ। जो फॉर एग्जांपल द डेट्स incurred directly by the local government of the territory transferred or incurred by the predecessor state for improvement of the territory would pass to the successor state. Although it seems fair, this rule is not clearly supported by state practice at all. ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये तो मैंने आपको एज ए डायग्राम समझाया। अगर आपको ये याद ना रहे so just write that so the debts which are incurred directly by the local government of the territory transferred, local government of territory transferred or incurred by predecessor state as well for improvement of that territory right, of that territory would pass to the successor state. बट ये फॉलो नहीं होता है ज़्यादातर। अब आर्काइव्स की हम बात करते हैं। All the archives which are necessary to administer the territory transferred or which are directly related to the territory will get transfer होगा। ठीक है, with this the basic idea of this is reflected in 1983 Vienna Convention on Succession of States, and it is that the successor state is entitled to the documents which are necessary to administer the territory, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, स्टेट प्रॉपर्टी का मैंने आपको बता दिया है। स्टेट प्रॉपर्टी का भी अगर क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से जो डी ज्यूरे और डी फैक्टो गवर्नमेंट का फ़र्क बता के आप लिख सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट again the 1983 Vienna Convention on Succession of States talks about it, right?
एंड सो आई थिंक दिस इज़ इट. ये क्लीन स्लेट का ये कॉन्सेप्ट कभी पेपर में आया नहीं है. अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे एक बारी बहुत, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है. मैं बना दूंगा अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो दैट एनी अदर थिंग्स लेफ्ट. विल कम टू द नेक्स्ट class which is of state jurisdiction, right? Till then, don't fail to like, share and subscribe, and have a great day ahead. Thank you.